मैं इंजीनियर AK सिंह RBS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से RBS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से इंजीनियर AK सिंह आपको सेकंड ईयर 4th सेम सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का सब्जेक्ट RCC पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक है शियर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ यूनिट है 3 और लेक्चर है 6। लेक्चर नंबर है 6। इसमें आज अपन पढ़ेंगे कि बॉन्ड क्या होता है। द टर्म बॉन्ड refers to the adhesion between concrete and steel, which resist the slipping of steel bar from the concrete. It is the bond which is responsible for transfer to stresses from steel to concrete, and thereby providing composite action of steel and concrete in RCC. This bond develops due to setting of concrete on drying, which results in gripping of steel bars. The bond resistance in reinforced concrete is obtained by the following mechanism: chemical adhesion, frictional resistance, gripping action, mechanical interlock. The bond is assumed to be perfect in the design of reinforced concrete. The bond between steel and concrete can be increased by the following methods. First, using deformed bars. Using rich mix of concrete. इसके बाद इसमें आता है डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ क्या है? फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड एंड फॉर डेवलपमेंट लेंथ, लेट अस कंसीडर ए स्टील बार। एक स्टील बार जो है आप कंक्रीट में फंसा हुआ है इस तरह से, और इसको खींचने में यहाँ पे ये टेंशन फोर्स लगा है कैपिटल T, और ये जो है LD कैपिटल LD लंबाई तक अंदर है LD, और इसमें इस तरह से टाउ BD, इसका भी मतलब बताएंगे आपको। तो फॉर अंडरस्टैंडिंग concept of bond and development length, let us consider a steel bar embedded in concrete as shown in this figure. The bar is subjected to a tensile force capital T. Due to this tensile force, the steel bar
tend to come out, will tend to come out and slip out of the concrete. Slip out of the concrete. ठीक है. This tendency of slipping is resisted by the bond stress. Bond stress developed over the surface of the bar. Bond stress tau BD is the shear stress developed along the contact surface between the reinforcing steel and the surrounding concrete which prevents the bar from slipping out concrete. मतलब ये है कि ये shear stress डेवलप होती है along the contact surface between the reinforcing steel and the surrounding concrete which prevents the bar from slipping out of the concrete. To avoid slipping, T must be less than equal to tau BD into 2 pi phi by 2 into LD. ये जो 2 pi R into LD ये सरफेस एरिया है 2 pi R into LD. T बराबर 0.87 Fy, T बराबर होगा 0.87 Fy पाई बाई 4 फाई का स्क्वायर. ये आपका T है. तो इन दोनों को हम बराबर करेंगे 0.87 Fy पाई बाई 4 फाई का स्क्वायर लेसर देन इक्वल टू टाउ BD 2 पाई इंटू 5/2 इंटू LD. इसको हल करेंगे तो LD विल कम आउट ग्रेटर देन इक्वल टू 0.87 Fy इंटू 5/4 टाउ BD. ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. डेवलपमेंट लेंथ LD क्या है? LD इज embedded length of steel bar. जितनी छड़ की लंबाई कंक्रीट में अंदर की गई है उसको कहते हैं एम्बेडेड. Fy आप जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ बार. टाउ BD है
टाउ बी डी अभी आया है शब्द ये, इसको कहते हैं डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस लिमिट स्टेट मेथड। और फाई आप जानते ही हैं, डायमीटर ऑफ बार। पाई क्या है? डायमीटर ऑफ बार। इसके बाद एल डी इज कॉल्ड डेवलपमेंट लेंथ। ये जो एल डी है, ये जो एल डी निकाला आपने, इसको कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ, it is the minimum length of bar which must be embedded in concrete beyond any section to develop its full strength. This is also called anchorage length. This is also called anchorage length in a case of axial tension or axial compression, and development length in case of flexural tension or flexural compression. As per IS code 456/2000, the development length is given by LD is equal to LD बराबर 0.87 FY into phi by 4 tau BD. The permissible bond stress tau BD depends on the grade of concrete and type of steel. Permissible bond stress tau BD depends upon the grade of concrete and type of steel. The values of permissible bond stress are given by in book also and code also. आप कोड में इसे देख सकते हैं। टाउ वीडी कहाँ पे है? चलिए बता देंगे आपको अभी टाउ बी डी कहाँ पे मिलेगी। फॉर डिफॉर्म्ड बार्स, अब टाउ बी डी अपन को निकालना है। टाउ बी डी अगर आपको कोड से मिल जाएगी, M20 ग्रेड के लिए जो है टाउ बी डी 1.2, M25 के लिए होती है 1.4, M30 के लिए 1.5, और ये प्लेन बार्स के लिए, और अगर डिफॉर्म्ड बार्स के लिए ये है 1.92, 2.24 और 2.4। इस तरह से ये तो आपको चीज़ जो कोड में मिल जाएगी, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से डेवलपमेंट लेंथ बार की अब निकाली जाएगी, इसी फॉर्मूले में रख के एल डी 0.87 एफ वाई का मान रख देंगे, फाई के टर्म्स में निकल के आएगी। तो डेवलपमेंट लेंथ फॉर टेंशन, मतलब टेंशन के लिए अलग निकलेगी हर ग्रेड के लिए, और मतलब स्टील के हिसाब से एल डी और कंक्रीट के हिसाब से दोनों का यूज़ होगा इसमें। और इसके बाद
हम एक सवाल लेते हैं जिससे कि काफ़ी क्लियर हो जाएगा। सपोज एक आरसीसी बीम है, क्वेश्चन है, जिसका कि खंड माप दिया है 250 mm इंटू 500 mm और इसका क्लियर स्पान है 5.5 m यानी 5.5 मीटर। द बीम कैरीज 2-20 mm diameter bars going into the support. Forced shear force is 140 kilonewton. Factored shear force 140, ये दिया हुआ factored shear force 140 kilonewton. Check for development length. Check for development length if FE 415 and M20 grade of concrete is used. क्लियर कवर जो है इसमें हम मान लेते हैं, क्लियर कवर दिया है सवाल में, या मान लेते हैं एज्यूम क्लियर कवर 20 mm। तो स्मॉल डी क्या हो जाएगा, 500 माइनस 20 और माइनस हमको इफेक्टिव डेप्थ चाहिए, इसलिए आधा छड़ का एरिया इसका 5/2 का हट जाएगा। तो छड़ डाली गई है 20 mm 5 की, तो 10, तो ये आपकी आ जाएगी 470 mm। अब अपन को क्या निकालना है, आपको AST एट सपोर्ट दिया हुआ है जो कि ये 140 AST आपको दिया हुआ है 140 किलो न्यूटन। AST नहीं, सॉरी, ये है V, ये V दिया हुआ है 140 किलो न्यूटन, यानी 140 × 10³ न्यूटन, और AST निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 2 × π/4 20 का स्क्वायर, और AST आ जाएगा आपका 628 mm²। तो आपको B दिया है, D दिया है, वर्टिकल शियर फोर्स दिया है, और AST दिए निकाल लिया आपने। M20 ग्रेड कंक्रीट है, इसलिए FCK का मान होगा 20 न्यूटन पर mm², और FY का मान होगा 415 न्यूटन पर mm², राइट। अब मूवमेंट एट सपोर्ट्स, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी M1 एट द सेक्शन, ये अपन पहले ही पुराना फार्मूला यूज कर रहे थे, 0.87 FY AST इंटू D और 1 माइनस AST FY बटे BD/FC/K। ये भी फार्मूला कोड में मिल जाएगा, आप गौर से देखिए, मिल जाएगा। 0.87 FY 415 AST 628, D का मान 470, 1 माइनस AST 628 FY 415 BD B 250 और D 470 और FCK 20। इसको आप हल करेंगे तो M1 का मान आएगा 94.748 इंटू 10⁶ न्यूटन mm, ये M1। अब चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, जो कि अभी सवाल का बॉन्ड का चैप्टर का पोर्शन यही है, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ। चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ, चेक फॉर डेवलपमेंट लेंथ करिए साहब। M1/V
प्लस एल जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू एल डी। एल डी क्या है? एल डी का मान है 0.87 एफ वाई 5/4 टाउ बी डी। ये आपने पहले ही फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। एल डी इक्वल टू 0.87 एफ वाई इंटू 5/4 टाउ बी डी। और टाउ बी डी का मान, टाउ बी डी का मान होगा 1.6 इंटू 1.2। टाउ बी डी का मान होगा 1.6 टाउ बी डी। एम, ये एम 415 डाला गया इसलिए 1.6 इंटू 1.2, ये आ गया 1.6 इंटू 1.2। टाउ बी डी बराबर है, टाउ बी डी का मान 1.20 के लिए 1.2 तो इसका टाउ बी डी है। टाउ बी डी का मान है 1.2 और 1.6 का इसमें गुणा किया गया है। 1.6 का 1.6 इंटू 1.2 बराबर 1.92 न्यूटन पर एम स्क्वायर। एल डी का मान होगा 0.87 एफ वाई 415 गुणित 20/4 इंटू 1.92 टाउ बी डी। एम 20 गेट की कंक्रीट के लिए, ओहो ठीक 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 है। फॉर्म डिफॉर्म्ड बार्स के लिए इसमें लिखा है, मैं आपको बता देता हूं। फॉर डिफॉर्म्ड बार्स के लिए, डिफॉर्म्ड बार्स के लिए जो है टाउ बी डी का मान 60% मोर देन होता है फॉर प्लेन बार्स। और ये जो बार आया है ये टाउ बी डी, ये 1.2 इंटू 1.6 इस तरह से, मतलब 60% बढ़ा देंगे। या इसका गुणा कर लीजिए तो आपकी बुक में दिया होगा डायरेक्ट डिफॉर्म्ड बार्स के लिए 1.92। ठीक है, मतलब ये या तो 1.92 डायरेक्ट दिया होगा आपकी बुक में FE 415 के लिए। लेकिन अगर आप टाउ बी डी का मान आपको प्लेन बार्स के लिए पता है तो उसमें 1.6 का गुणा कर लेंगे, यानी 60% बढ़ा देंगे टाउ बी डी। फॉर हायर स्टील के लिए HYSD बार्स, डिफॉर्म्ड बार्स के लिए इसमें 60% मान बढ़ा देते हैं। तो ये आपका आ गया, ये मान कितना है निकल के 940.2 mm, 940.2 mm। अब क्या करेंगे? प्रोवाइडिंग 90% बेंड एट द सपोर्ट, providing 90-degree bend at the center of support। तो anchorage length will be L0 इक्वल टू 8 इंटू 20 यानी 160 mm। ये आ गई L0, क्या आ गई L0। M1/V प्लस L0 ये हो गया 94.748 इंटू 10⁻6/V 140 गुणित 10⁻3 प्लस 160। ये आ गया M1 प्लस
ये आ गया निकल के 836.77 एंड इट इज लेस देन एल डी, बिकॉज एल डी का मान कितना है, एल डी का मान आया आपका 940.2 mm। ये M1 प्लस L0 का मान इससे कम आना चाहिए। तो कोडल रिक्वायरमेंट इज नॉट सेटिस्फाइड हियर, देयर इज ए नीड टू इंक्रीज एनकरेज लेंथ। ये मान जो है ज़्यादा आना चाहिए। इसकी शर्त क्या है, M1 प्लस L0, ये लिखा है M1 प्लस L0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू LD। लेकिन हमारा सवाल में क्या हो रहा है, ये मान इससे कम आ रहा है, जबकि ज़्यादा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग ए यू बैंड एट द एंड ऑफ द बार, प्रोवाइड ए यू बैंड एट द एंड ऑफ द बार। Encourage length will be 16.5, 16 into 120 only 20, ये आए 320 mm। कितनी आई, 320 mm, 320 mm। फिर से लगाएंगे M1 अपॉन V प्लस L0, M1 अपॉन V 94.748 इंटू 10 टू द पावर 6 बाई 140 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 320, ये आई आपकी 997। इट इज mm, इट इज ग्रेटर देन LD विच इज 940.2 mm। नाउ कोडल रिक्वायरमेंट, हेंस कोडल requirement is satisfied।